हाँ, see, biological is a broad term. In biological हो सकता है प्लांट भी आए, एनिमल भी आए, algae भी आए. So why we are giving a broad term? Why not we can give a specific? Because this spoilage is caused by the microorganism. So why not we can give a microbial spoilage of canned food instead of biological spoilage of canned food? We can give a specific now, because here microorganism is responsible to cause the spoilage in canned food. हाँ बोलो राजू, कुछ बोल रहे थे. Sir, can we detect earlier stage of a microbial spoilage? Can we detect? Means pre-process Earlier spoilage. stage of microbial. That means pre-process spoilage now. Hello. Microbial spoilage. Earlier stage में detect. Raju, first of all, yes sir, concept should be clear. This microbial spoilage in canned food is basically caused by this four means factor. First is the under process, second is the inadequate cooling, third is leakage through seam, fourth is the pre-process spoilage. Whatever the question you are asking now, it comes under the pre-process spoilage. That means you are telling the early detection of the spoilage. Am I right? yes. So that comes under the pre-process spoilage. That means until and unless जब तक हमारा मछली आया, उसको काटा, छांटा, ट्रीटमेंट किया, सॉल्टिंग किया, ब्लांचिंग किया, फिलिंग किया, पैकिंग किया, एग्जॉस्टिंग किया, सीमिंग किया, रिटॉर्ट तक पहुंचते पहुंचते ये कितना बड़ा लंबा स्टेप है. इतना लंबे स्टेप में अगर टाइम हमारा जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी मीन्स जो वो टाइम दिया गया है उस टाइम ड्यूरेशन में करना है. If we are not doing all these protocol within that time frame, so there is a delay. If the delay is occurring, definitely there will be a growth of microbes, because you are handling the food which is rich in nutrient and it may supports the growth of microbes. So these microbes may act on the nutrient, that means act on the food, and it may degrade, decompose, it may spoil. So that is the pre-process spoilage. We can detect. Why not? We can easily detect. We can detect by sensory. You can, by your sense organ, you can easily detect. But if you are interested to go for chemical test, by also you can detect the means chemical test. Then you have to do the indol test is there, scatol is there, then this biobarometric TBA test is there, then TBBN test is there. So all these tests you have to perform. So there will be a limit how much TMA should be there, how much TBBN should be there. So if that value is coming within the limit, then we have to accept. If it is crossing beyond the limit, then we have to reject. ठीक है? Yes sir. आगे बढ़े. केमिकल स्पॉइलेज. Yes sir. Okay. Now microbial spoilage of canned food we have covered. Now it is the chemical spoilage of canned food. So this chemical spoilage is basically the swell. जो कैन है वो कैन में स्वेल हो जाता है. क्यों हो जाता है स्वेल? Because of the production and formation of the hydrogen gas. If there is a formation and production of hydrogen gas inside the can, then we can say it is a chemical spoilage of canned food. Understood? But how this hydrogen gas is formed? Because of the internal corrosion of the can. See, suppose ये हमारा basically जो can हम बनाते हैं, see ये एक metal sheet है,
ठीक है, इसी सीट से हम क्या करते हैं, कैन को हम बनाते हैं. वी आर गिविंग इनटू द सिलेंड्रिकल शेप, वी आर गिविंग इनटू द सिलेंड्रिकल शेप. इस तरह का कैन है, इधर से भी देख सकते हैं, उधर से भी देख सकते हैं, है ना. और ये हो गया. अब ऊपर में हम लिड डाल देंगे, नीचे में भी एक ढक्कन डाल देंगे, दोनों तरफ से क्लोज कर देंगे. सो दैट इज योर कैन. बट दिस इज द मेटल प्लेट्स. मेटल प्लेट्स बेसिकली इट इज ए बेस प्लेट. बेस प्लेट में क्या होता है, हमारा आयरन होता है. सो यू कैन से दिस इज द आयरन. ठीक है. उसके बाद जो हम लेयर चढ़ाते हैं प्लेट्स के ऊपर में, वो होता है आयरन टीन एलॉय लेयर. इसके ऊपर में आयरन जो स्टील बेस है, स्टील बेस के ऊपर में जो हम लेयर चढ़ाते हैं, दूसरा लेयर वो आयरन टीन एलॉय लेयर है. उसके बाद जो हम लेयर चढ़ाते हैं दैट इज द टीन फ्री लेयर. उसके बाद जो लेयर चढ़ाते हैं हम दैट इज द पेसिवेटिक ऑयल फिल्म और ऑयल लेयर और लैकर आल्सो. सो कितना सारा लेयर हो गया, 4-5 लेयर हो गया. सो इफ ऑल दिस लेयर इज स्क्रैचिंग, अगर किसी कारणवश से उस पर डेंटिंग हो गया, स्क्रैचिंग हो गया, कोरोशन हो गया, तो क्या होगा, ये जो लैकर है हमारा सबसे पहला लेयर, वो लैकर क्या हो जाएगा, हट जाएगा. लैकर के नीचे वाला जो ऑयल फिल्म लेयर है वो हटेगा. उसके नीचे जो हमारा लेयर है दैट इज द टीन. सो दिस टीन एरिया विल बी एक्सपोज्ड, है ना. अगर हम खुरेद दें, स्क्रैच लगा दें, कोरेशन हो जाए, तो वो एरिया क्या होगा, एक्सपोज हो जाएगा. वो टीन एरिया जो एक्सपोज हो जाएगा, तो वो क्या होगा, कैन बॉडी के अंदर में हमारा जो कैन कंटेंट फिल होकर के रखा है, वो कंटेंट्स हमारा टीन के साथ में रिएक्शन पैदा करेगा. कोरोशन विल अकर. सारा टीन जो है, वो सारा टीन क्या करेगा, आयरन को प्रोटेक्शन के लिए वो सारा का सारा कोरोड हो जाके कंज्यूम हो जाएगा, हट जाएगा. सो कौन सा एरिया एक्सपोज हो जाएगा, जो बेस प्लेट जो था हमारा स्टील बेस, वो एरिया हमारा एक्सपोज हो जाएगा. सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म. And these hydrogen gas, if it is formed inside the can, then it is called as chemical spoilage. अगर हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा तो कैन क्या हो जाएगा, बल्ज हो जाएगा, फूल जाएगा. पेट फूल जाता है ना. दूसरी तरह से हम समझा रहे हैं, हम मकान बनाते हैं. मकान बनाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पिलर डालते हैं. पिलर डाल के ही हम मकान खड़ा करते हैं. तो पिलर खड़ा करने के लिए जो हम सरिया लेते हैं, आयरन का रॉड लेते हैं, सो दैट इज द बेस. इट इज मेड अप ऑफ स्टील, आयरन. सो लाइक दैट इन मेटल वी आर हैविंग ए बेस प्लेट which is made up of a steel or iron, we can say. Like that in मकान जब हम बनाते हैं, उसमें भी हमारा जो आयरन है, पहले आयरन का ढांचा बनाते हैं, उसके बाद उसमें क्या करते हैं, सीमेंट, स्टोन्स, सैंड का मिक्सचर बना के, वाटर का मिक्सचर बना करके उसमें फिल करते हैं. एंड देन वी आर फॉर्मिंग ए पिलर. पिलर के ऊपर में भी हम क्या करते हैं, स्मूथनिंग करते हैं. स्मूथनिंग के लिए व्हाइट सीमेंट का उपयोग करते हैं. एंड व्हाइट सीमेंट का स्मूथनिंग के बाद में भी हम लोग पेंटिंग एंड प्राइमर क्या क्या लगा करके उसको अच्छा से कलर कर देते हैं. सो लेयर बाय लेयर वी आर अप्लाइंग ऑन द पिलर, अच्छा देखने के लिए. अगर उसमें किसी ने हैमर से, हथौड़ा से मार दिया, तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, जो हमारा व्हाइट सीमेंट का है या पेंट वाला लेयर है या हमारा सैंड, सीमेंट, स्टोन्स का जो लेयर था, वो एरिया क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. और अंदर का जो पोर्शन है जो स्टील से बना था, आयरन से बना था, वो एक्सपोज हो जाएगा. एक्सपोज हो जाएगा कहाँ, टू द एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में एक्सपोज हो जाएगा आयरन, तो क्या होगा, कोरोशन स्टार्ट होगा. तो वो मकान क्या होगा, जल्दी गिर जाएगा. सो लाइक दैट इट इज हैपनिंग इन द this chemical spoilage is happening into the canned food because of the production of hydrogen gas.
How it is formed? If there is any internal corrosion of the can exists inside the can, then there is a chances that it may form a hydrogen gas inside the can. And if the hydrogen gas is forming inside the can will be swell, bulge हो जाएगा. अगर swelling phenomena start होगा, so it starts from the flipper to hard swell. So that is the chemical spoilage of canned food. Now flipper to hard swell, how it is occurring, we will go one by one. You can see first is the flipper. This Amratya. Yes, sir. Now you have to understand what is flipper, what is a springer, and what is soft swell and hard swell. जो can है हमारा flipper में क्या है ना, how we can detect the flipper? So can will be a normal appearance. Can जो हमने बना करके फिल करके स्टेरिलाइज करके जो स्टोरेज में रखा है, स्टोर में वो हमको ऐसा ही दिखेगा नॉर्मल अपीयरेंस. लेकिन उस कैन को अगर हम ठक से हमने फोर्स के ताक में हम उसको पटक दें, टेबल के ऊपर में पटक दें, तो क्या होगा, एक एंड जो है ऊपर वाला एंड क्या होगा उसका, वो बल्ज हो जाएगा, मींस फ्लिप हो जाएगा, आगे की तरफ फ्लिप आउट हो जाएगा या बल्ज आउट हो जाएगा. यू कैन सी हियर एग्जांपल, this can is the normal. Don't forget about this break line. ये जो है हमारा नॉर्मल अपीयरेंस. अगर हम टेबल के ऊपर में ठक से हम फोर्स लगाएंगे तो ये क्या होगा, नॉर्मल वाला ये ऊपर उठ करके फ्लिप हो जाएगा, तो वन एंड क्या हो जाएगा, कैन का बल्ज हो जाएगा या ऊपर की तरफ उठ जाएगा. बट वी हैव टू अप्लाई ए फोर्स. जब तक हम फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तब तक वो फ्लिप आउट नहीं होगा, नहीं तो वो नॉर्मल ही रहेगा. ठीक है. So this is the flipper. Understood? Yes, sir. दूसरा जो है स्प्रिंजर. You can see this is the your can. ये बॉडी है दोनों साइड का, ये जो है लिड है, ये टॉप है, ये बॉटम है. इसमें क्या है, स्प्रिंजर में एक एंड जो है वो ऑलरेडी हमारा खुला रहता है, बल्ज रहता है. यू कैन सी बल्ज है, वन एंड इज बल्ज. लेकिन बल्ज एंड को अगर हम प्रेस करेंगे तो क्या होगा, वो नॉर्मल जो कैन का अपीयरेंस होता है उस पोजीशन में वो चला जाएगा. लेकिन अगर हम टॉप में प्रेस कर रहे हैं, टॉप में प्रेस करेंगे तो ये नॉर्मल पोजीशन तो चला गया, लेकिन बॉटम वाला जो पोजीशन है वो फिर से जाकर के बल्ज हो जाएगा. सो दैट इज द स्प्रिंजर. अंडरस्टूड? हेलो हेलो. Yes. Yes, sir. कोई कंफ्यूजन नहीं ना? No. हाँ. तीसरा जो है सॉफ्ट स्वेल. सॉफ्ट स्वेल में क्या होता है, कैन का जो एंड होता है चाहे टॉप हो या बॉटम हो वो ऑलरेडी बल्ज रहता है. ठीक है, बल्ज मतलब ऑलरेडी वो खुला रहता है. उसको हम थंब प्रेशर के द्वारा, उसको हम अगर थंब प्रेशर के द्वारा चाहेंगे नॉर्मल पोजीशन में चला जाओ, वो नहीं जाता है. अगर गैस किसी में फॉर्म है और उसके ऊपर हम दबाएंगे तो वो पिछला वाला जो स्टेज था स्प्रिंजर में क्या होता था, अगर हम दबाते थे ऊपर के वाले में तो नीचे वाला जाके फिर से फूल जाता था और ऊपर वाला जो था नॉर्मल आ जाता था. लेकिन सॉफ्ट सोइल में क्या है, वो ऑलरेडी खुला रहता है, बल्ज रहता है, और थंब प्रेशर के द्वारा जब हम उसको फोर्स डालते हैं थंब प्रेशर से, तो वो क्या होता है, वो नॉर्मल पोजीशन में जाता ही नहीं है. तो क्या होता है, वो हमने जब दबाया तब वो नीचे चला गया, वो फिर से वो जैसा था वैसा ही आ गया. नॉर्मल पोजीशन वी कांट गो इनटू द सॉफ्ट स्वेल स्टेज. सॉफ्ट स्वेल में तुम डालो, प्रेस करो, टक 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 आवाज तुमको आएंगी.
गांव घर में करते रहते हैं, कोई ढक्कन ले लेते हैं, टक 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 बजाते रहते हैं. So like that it is occurring into the soft shell can. जो कैन होगा ऑलरेडी बल्ज होगा, उसको हम थंब से प्रेस करेंगे, नॉर्मल पोजीशन में वो नहीं जाएगा, थंब का प्रेशर जैसे ही हटाएंगे वो फिर से वही स्वेलिंग स्टेज में आ जाएगा. सो दैट इज सॉफ्ट स्वेल. ठीक है. यस सर. नाउ हार्ड स्वेल. हार्ड स्वेल में क्या है? हार्ड स्वेल में क्या है, जो बल्ज पोर्शन है वो उसमें इतना गैस टाइटली से भरा हुआ है, अगर हम मतलब चाहे भी जो हम दबाएं तो वो दबेगा नहीं. क्योंकि ऑलरेडी जो गैस उसमें फॉर्म है वो इतना गैस फॉर्म है जो भाई हम चाह रहे हैं जो उसको दबाने का भी कोशिश कर रहे हैं, हमको लग रहा है ये फुला है, लेकिन अंदर में इतना गैस फॉर्म हो चुका है जो वो चाह के भी वो नॉर्मल पोजीशन क्या, वो तो ऐसे टक 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 जो सॉफ्ट स्वेल में हो रहे थे वो भी नहीं हो रहे हैं. सो दैट इज द हार्ड स्वेल, एंड दिस हार्ड स्वेल इज द परमानेंटली कॉन्वेक्स. परमानेंटली वो कॉन्वेक्स पोजीशन. देयर इज टू काइंड ऑफ पोजीशन ना. कॉन्वेक्स में उठा रहेगा, कॉनकेव में धंसा रहेगा, है ना. तो हार्ड स्वेल इज दैट. एनीवन इज हैविंग ए कंफ्यूजन यू मे आस्क. केमिकल स्पॉइलेज यहाँ पे खत्म हो रहा है. सर अगर कैन फ्लिपर स्टेज में चल गया तो उसी को रोक नहीं सकते कि आगे स्टेज में न जाए? क्या क्या? अगर कैन फ्लिपर स्टेज में चल गया है तो उसको रोक के ठीक कर सकते हैं ना, कि आगे स्प्रिंजर स्टेज इस समय स्टेज में ना जा सके? रोक सकते हैं एक ही केस में. अगर वो फ्लिपर में है तो कैन का जो ढक्कन है खोल दो, आप परोस के खा लो. अच्छा, सॉफ्ट सेल से भी ठीक है, सॉफ्ट सेल से भी नॉर्मल पे ले जा सकते हैं कि नहीं? यू कांट गो बैक यार. फ्लिपर और स्प्रिंजर तक जो है, चलो कंटेंट्स उतना हमारा मींस गैस या लिक्विफाइड एसिडिफाइड नहीं रहते हैं, तो यू कैन कंज्यूम. सॉफ्ट सेल एंड हार्ड सेल में जो है थोड़ा कंटेंट्स जो है ज्यादा ही खराब हो जाता है. तो आई थिंक आई विल रिकमेंड दैट यू डोंट open the can. You can open, no issue, but if you are opening the can you will get one bad smell or one smell. अगर ज्यादा वो हाइड्रोजन सल्फाइड है, अमोनिया वाला गैस है, या इंडोल या एस्केटोल वाला गैस है, तो यू विल गेट रॉटन स्मेल. अगर हाइड्रोजन गैस वाला स्मेल है तो उतना खराब स्मेल तो हमको नहीं मिलेगा हाइड्रोजन में. बट कंटेंट्स ऑलरेडी देखना, जो पानी छोड़ दिया रहेगा, लिक्विडिफाइड रहेगा, तो उतना जो नॉर्मल कैन होता है उसका टेस्ट और इसका टेस्ट दोनों में यू विल गेट हियर. कौन सा टेस्ट मिलेगा पता है? इसमें जो टेस्ट मिलेगा हमको वो मिलेगा हमको मेटेलिक टेस्ट. अगर केमिकल स्पॉइलेज है और अगर हाइड्रोजन स्वेल की वजह से ही हुआ है तो यू विल फील ए मेटेलिक टेस्ट. तो इस तरह का कैन को ओपन करके यू कैन कंज्यूम, नो इश्यू. लेकिन अगर हमारा स्वेल माइक्रोबियल की वजह से हो रहा है और उसमें हाइड्रोजन सल्फाइड फॉर्म हो गया है, या इंडोल या एस्केटोल या डाइमिथाइल सल्फाइड या मिथाइल सल्फाइड, तो दैट मींस दैट जो प्रोडक्ट है वो ऑलरेडी खराब हो गया. यू डोंट हैव टू कंज्यूम. बट केमिकल स्पॉइलेज में यू कैन कंज्यूम, नो इश्यू. बोलो. हाँ, तो जैसे केमिकल स्पॉइलेज में जनरली जो होता है हाइड्रोजन फॉर्मेशन की वजह से होता है, जो कि कैन के अंदर फॉर्म करता है. तो सर इसको हम प्रिवेंट या फिर रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? जैसे कि आप बता रहे थे कि सर कि जो फूड का जो इनसाइड द कैन सर जो फूड रहता है या मछली रहती है, कुछ भी रहता है, तो उसमें एसिडिटी जो बढ़ जाता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन का फॉर्मेशन बढ़ जाता है. हम बता रहा हूँ, सुनो ना. तो वहां पे इसको प्रिवेंट करने का हमारा एक ही उपाय है. जो हम कैन फॉर्म कर रहे हैं, जब हम कैन का बॉडी फॉर्म कर रहे हैं, तो फॉर्मिंग के समय में और हैंडलिंग के समय में जब तक हम फूड को डालते हैं तब तक हमको वो अच्छे से देखना है. जो कैन के बॉडी का इनसाइड जो पोर्शन है, अंदर के वाला जो भाग है जिसमें हम फूड को पैक करते हैं, उसको हमको केयरफुली देखना है. जो उसमें कोई डिफेक्ट्स तो नहीं है,
कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है, कोई उसमें कोरोशन तो नहीं है, कोई उसमें डेंटिंग तो नहीं है, कोई उसमें स्क्रैचिंग तो नहीं है। अगर वो उस तरह का चीज है, चाहे डेंट हो, फिजिकल डैमेज हो या स्क्रैच हो इनसाइड द कैन, बॉडी अंदर वाला पार्ट में, तो उस कैन को हमको इस्तेमाल नहीं करना है। अगर इस तरह के कैन को हम इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली हमको इस तरह का स्पॉइलेज आएगा। यानी कि इम्परफेक्शन जो होता है, जैसे जो इम्परफेक्शन जो आता है सर, जैसे टैनिंग हो गया या फिर लेकरिंग जो हम करते हैं उसके वजह से। और सर टेम्परेचर यहाँ पे मैटर करता है सर? टेम्परेचर का यहाँ रोल नहीं है। टेम्परेचर बोले ना, ये हाइड्रोजन स्वेल, ये देखो देयर इज टू काइंड ऑफ स्वेल। एक केमिकल की वजह से भी हो रहा है, अगर वो हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रहा है तो ये हुआ फिजिकल। दूसरा माइक्रोबियल की वजह से अगर स्वेलिंग हो रहा है, माइक्रोबियल स्वेलिंग में जो होता है वो टेम्परेचर के कारण होता है, बिकॉज अंडर प्रोसेस कैन, दैट मींस whatever the temperature and time is assigned to kill the microbes, that time and temperature we are not providing. Then there is a chances that microbes may survive and they may grow into the food and it may acidified and it may produce the gas. तो गैस जो है प्रोड्यूस कब होंगे? जब हमारा प्रोटीन क्या है, हमारा फिश इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। सो माइक्रोब्स में प्रोटीन को डिग्रेड कर देगा, डिकम्पोज करेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड बनाएगा, अमोनिया बनाएगा, डाइमिथाइल सल्फाइड बनाएगा, मिथाइल सल्फाइड बनाएगा। दैट मींस जो फूड का जो क्वालिटी था, जो टेस्ट क्वालिटी, वो लॉस हो गया। हाँ सोनू बोलो। हेलो 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 हाँ सोनू, वो हेलो। यस सर। अरे वो बीच में पावर चला गया। हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे थे। पढ़ाई होता बाद में। हाँ नहीं यू में आस्क ना यार, व्हाई यू आर कंफ्यूज मींस ये है, अभी वही तो क्लास चल रहा है ना, तो यू कैन आस्क नो इश्यू। नहीं, मैं ये पूछ रहा था कि बोलो सर बोलो। कि टेम्परेचर जो स्टोरेज का हमारा टेम्परेचर स्टोरेज टाइमिंग होता है, अगर उसको हम बढ़ाते हैं तो सर वहाँ पे मतलब कि हाइड्रोजन जो फॉर्म करता है सर वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? हमने बोला बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा? अगर हमारा कैन जो हमने यूज किया फिलिंग के लिए, पैकिंग के लिए, कैन फूड बनाने के लिए, उसके अंदर में अगर कोई फिजिकल डिफेक्ट है, कोई स्क्रैचेज है, कोई रस्टिंग है या कोई कोरोशन है, कोई डेंटिंग है, कोई स्क्रैपिंग है, उस तरह का कैन को हमने इस्तेमाल कर दिया फूड पैकिंग के लिए और उसको हमने फिल करके रिटॉटिंग करके उसको स्टोरेज हाउस में डाल दिया, तो डेफिनेटली केमिकल स्पॉइलेज तो उसको होना ही है, चाहे हम कितने दिनों के लिए भी रखें। वो स्टार्ट होगा पहले फ्लिपर से, वो जाएगा हार्ड स्वेल तक, वो तो होना ही है। इसीलिए जब हम कैन सेलेक्ट करेंगे पैकिंग के दौरान, तो उस समय में हमको ये देखना है उसमें कोई डिफेक्ट्स नहीं होना चाहिए, कोई स्क्रैच नहीं होना चाहिए, कोई हमारा कोरोशन नहीं होना चाहिए, कोई हमारा डेंट नहीं होना चाहिए। वो सब चीज हमको देखना है जब हम फिलिंग के समय में कैन को यूज करते हैं। और किसी को कुछ पूछना है? केमिकल स्पॉइलेज खत्म हो रहा है। हेलो आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़िए। ठीक है। Now coming to the physical spoilage, we have covered the microbial spoilage, we have covered the chemical spoilage. Now it is the physical spoilage of canned food. Physical spoilage of canned food जो होते हैं बेसिकली faulty retort operation। जो रिटॉर्ट हमारा यूज करते हैं हीट स्टेरिलाइजेशन के लिए, हीट प्रोसेसिंग के लिए,
अगर वो रिटॉर्ट को हम अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हैं, अच्छे तरीके से उसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, सो वो फॉल्टी रिटॉर्ट ऑपरेशन में काउंट हो जाते हैं. एंड बिकॉज ऑफ दिस फॉल्टी रिटॉर्ट ऑपरेशन, physical spoilage may occur in your can food. So how this faulty retort operation exists during the canning operation? If the steam pressure is reduced, that means after the completion of the sterilization, heat sterilization into the retorting process, if we are reducing the steam pressure too rapidly, सडनली हम क्या करते हैं, स्टीम प्रेशर, रिटॉर्ट का जो स्टीम प्रेशर है उसको हम रिड्यूस करते हैं, तो क्या होगा, जो कैन कंटेंट है उसके इनसाइड का जो प्रेशर है वो प्रेशर हमारा बिल्डअप हो जाएगा, मतलब हाई प्रेशर उसमें आ जाएगा. और बिकॉज ऑफ द बिल्डिंग ऑफ हाई प्रेशर इनसाइड द कैन कंटेंट, वो क्या होगा, जो सीमिंग पोर्शन है, जो सीम पोर्शन है, सीम पोर्शन इज द वल्नरेबल पोर्शन, तो वो सीम पोर्शन पे ये सेवियर स्ट्रेन आएगा, डिस्टोरेशन हो सकता है कैन हमारा फट जाए, ब्रस्ट कर जाए, या फिर हमारा जो कैन का जो सीम है वो वीक हो जाए बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस. सो बिकॉज ऑफ दैट means faulty retort operation, swelling process may occur, also the peaking because of this abnormal strain. So this is the first. This swelling also exists because of the under exhausting. Under exhausting is what? Hello. Yes sir. Exhausting is what? सर जो गैस फॉर्मेशन हो रहा है कैन में उसको बाहर निकालना. क्या अमरनाथ यार तुम ऐसे बोल रहे हो, exhausting is the process of canning यार. In the canning what we are doing, we are removing the air from the contents as well as the head space, so that is the exhausting process. And there is 3 kinds of process of exhausting. One is the heat exhausting, another one is mechanical exhausting, and there is a steam injection exhausting. Steam. So that type of answer you have to give. So under exhausting, that means whatever the air is there inside the contents, that means inside the food or inside the head space, if we are not removing that air during the exhausting process, what will happen? This air will be released during the heat processing. So excess strain may occurs at the seam portion. So if we are not removing the air from the contents as well as from the head space, then it comes under the under exhausting. That means air is there inside your contents, inside your food, inside your head space. So this air from the content may get released during the heat processing. तो जो एयर हीट प्रोसेसिंग के दौरान में अगर वो निकलेगा तो जो सीम पोर्शन पे हमारा अगेन फिर से वो प्रेशर डालेगा, तो हमारा सीम पोर्शन को वीक कर सकता है, अंदर जो है स्वेलिंग अकर हो सकता है बिकॉज ऑफ द एयर रिलीज्ड ड्यूरिंग द हीट प्रोसेसिंग. So that is one. Swelling occurs because of this under exhausting. Then third is the overfilling. Overfilling is what? Hello? Hello? Yes sir. Overfilling Yes. is what? Sir. ओवरफिलिंग ज्यादा मतलब जितना हाँ? हेड स्पेस नहीं छोड़ेंगे सर तो. Yes. That means जो फूड हम पैक कर रहे हैं कैन कंटेंट के अंदर में, तो we have to leave some head space inside the can. If we are not leaving the head space into the can and we are filling
the food. So this piece we have utilized, then there is a no space. So ये क्या होंगे, ओवरफिलिंग है तो अगेन हीट प्रोसेसिंग के दौरान में हो सकता है एयर रिलीज हो, और ये एयर रिलीज होगा तो स्पेस तो है ही नहीं कैन के अंदर में, तो ये क्या होगा, हमारा कैन हमारा बल्ज हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा. So that is also because of the overfilling. This is important. Paneling. Most commonly come in JRF, SRF, ARS, almost all the competitive exams. This paneling is a phenomenon. It is a phenomena. How it is appearing? If we are using a tall can, अगर लंबा कैन है और उस कैन को बनाने के लिए अगर पतला सा मेटल प्लेट्स यूज किया गया है या टिन प्लेट्स यूज किया गया है, सो व्हाट इज हैपनिंग, बिकॉज ऑफ द हाई वैक्यूम, क्योंकि एग्जॉस्टिंग के दौरान में क्या होता है, हम जो एयर रहता है हमारा, वो सड़ा का सड़ा एयर को हम क्या करते हैं, सक कर लेते हैं, हटा देते हैं. तो जब सक करेंगे, सक के दौरान में क्या होता है, एयर तो हटा दिया, अब हीट प्रोसेस चल रहा है, अंदर में हीट प्रोसेस चल रहा है, बट जो कैन का जो बॉडी है उसका, एक तो लंबा कैन है और जो मेटल प्लेट्स है वो बहुत थीन से बना हुआ है, तो उसके कारण क्या होता है, वो कैन हमारा पचक जाता है. पचकना मीन्स देयर विल बी इनवर्ड फ्यूजन, फोर्स की वजह से वो इनवर्ड की तरफ धंस जाता है. तो बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब हम बाहर रखते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पैनलिंग. पैनलिंग मीन्स बता रहा हूं, से दिस इज योर नॉर्मल कैन. नॉर्मल कैन का ये हमारा फुला रहेगा, है ना, ये फुला है, बट सडनली ये फुला वाला पार्ट अगर इस तरह से पचक गया, तो दिस इज कॉल्ड एज पैनलिंग. अंडरस्टूड? यस सर, भूलना नहीं है, ये हमारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है. नाउ मिसेलेनियस स्पॉइलेज है, तो इसमें जनरली आते हैं, अगर कैन का सरफेस जो है, अगर वो रस्टिंग हो गया है, डैमेज्ड हो गया है, डिफॉर्मेशन हो गया है सीम में, या डेंट हो गया है, या स्क्रैच हो गया है, so all this comes under the miscellaneous spoilage or miscellaneous specs. Because of that also the physical spoilage may occur. I think today this is over, spoilage of canned food. If you are having any confusion or doubts, you may ask. हेलो हेलो, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो. ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड हो सकता है एग्जाम में आए, और इसमें बहुत सारी चीज ऐसा है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, और जो आते हैं वो हम बता चुके हैं. यू डोंट हैव टू फॉरगेट. सर इन तीनों में रैपिड स्पेलिंग किसकी वजह से होता है सर? कौन सा रैपिड स्पेलिंग किसकी वजह से होता है इन तीनों में, माइक्रोबियल, केमिकल और फिजिकल? रैपिड टेस्ट भाई देखो, रैपिड स्पॉइलेज तो हमारा माइक्रोबियल होगा. ओके. एनीवन? नहीं पूछना है? नो सर. मतलब साड़ा का साड़ा समझ में आ गया, मतलब पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम में बैठेंगे पूरा लिख देंगे. नहीं सर, रिवाइज कर लेंगे सर. हाँ ठीक है. अगर फिर भी अगर दिक्कत हो, परेशानी हो, तो यूट्यूब चैनल है हमारा बासु का, वहां से डाउनलोड करके वीडियो यू कैन इजीली, जितना बार देखना है देख सकते हो. डाउनलोड भी अगर नहीं करना है बार बार, यू कैन गो एंड विजिट टू दैट चैनल,
you can watch it. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। घर में रहो, सुरक्षित रहो, अच्छे से रहो, घर से बाहर मत निकलो, घर में अच्छे से पढ़ाई करो, ठीक है? स्टॉप करें? Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके ओके ओके। Thank you, sir. हम्म।